One of you can unmute and tell me what is written on your screen. Yes, micro teaching. Okay. All of you can hear me? Yes? Yes, ma'am. Okay, thank you. Dr. Allen and his group evolved micro-teaching in 1963 in America. Okay, and you all can see in this picture that the number of students is limited. Okay, it is not the same as your classroom, regular classes. Okay, how many students are there? 1, 2, 3. There are around 7 participants, or you can say students. Okay, this is the peer group, and the teacher is teaching one skill at a time. You can say that this is the blackboard writing skill that she is teaching. So this picture gives you the view of a micro teaching class in which specialization will be given of one skill at a time. And students, remember that this is a training technique. This is not a teaching technique. Okay. Next, what is micro teaching? Now, meaning of micro teaching, you all have studied yesterday. The teaching of a small unit of content, okay, to a small group of students, 6 to 10 number, in a small amount of time, okay, 5 to 7 minutes, it can be 10 minutes also. It means micro teaching, and it is also a skill training technique. It is a short session teaching, okay, and training is given to the inexperienced student teachers so that they acquire all the skills of teaching, of good teaching, okay, to improve the skills of experienced teachers also, because when we are going to give you the demonstration, then you will tell us, you will give us the feedback. Okay, let me admit some more students. Next we have micro teaching cycle. Okay, first you have to plan. Okay, plan your micro lesson. Then there is teaching of 5 to 10 minutes. Then feedback is given to you by the supervisors and also your peer group. Then again your supervisor will tell you to replan your lesson. Then you will again practice, then you will again teach that, and then again re-feedback is given till your skill is polished. Okay, and you know that you are performing very nicely. Next we have the characteristics of micro teaching. So you can all go through these characteristics. Okay, then I will ask you, or you can read one by one. Let me see who all have joined. Gurleen, you can read. Gurleen can hear me? Yes, ma'am. Okay, very good. Just read the point, first point. The duration of teaching as well as number of students are less. The Yes. content is divided into smaller units, which make the teaching easier. Okay. Only one teaching skill is considered at a time. Yes. There is a Okay. provision of immediate feedback. Yes, very good. Okay, so all of you have understood these 4 points? Yes? Okay. Yes, ma'am. Okay, okay. Now Divya, you read next one. Divya is not hearing, I think. Ma'am, the next point is in Very micro good. teaching cycle, there is facility of replanning, reteaching, and re-evaluation. Yes. It puts the teacher under the, yes. Microscope. All the faults of the teacher are observed. The problem of discipline can also be controlled. Okay.
Did you understand this point, sixth point, that it puts the teacher under the microscope? Yes, ma'am. Okay, what is that? मैम इसमें बेसिकली ये कि जो टीचर है उसको सारे बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के बाद उसको फीडबैक देते हैं, तो यू हैव द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट वेरी गुड। एंड आपको प्रोफिशिएंसी मिल सकती है उस स्किल में। बहुत अच्छा बोला। चलो, now we will compare your teaching and the micro teaching. In the teaching which we teach the students in the school, when you go to teach the students, then there are 40 to 60 students, and in micro teaching 6 to 10. Okay, then the teacher practices several skills at a time in your regular class. Means simultaneously the teacher has to use Blackboard. Okay, she will give you the introduction of the lesson, she will ask you questions, skill of questioning is there, all integration of the skill is there in your regular teaching. But in micro teaching, what happens, one skill at a time you have to perform. Okay, first the demonstration is given by your teacher and then you will give the demonstration. Next is the duration is 40 to 45 minutes, your regular class, but in micro teaching it is 5 to 7 minutes. Okay, then immediate feedback is not given to the teacher when she is teaching in the class, but over here your supervisors and your peer group will give you the immediate feedback once you have taught in the micro teaching class. There is no control over the situation over here in the traditional teaching. What do you mean by there's no control? And over here there is some control in the micro teaching. The situation is under control. It means that the environment, the setting of your class. Over here it is the peer group whom you are going to teach. But in your regular class, when you are going to teach in the school, that time the age of your students is not the same as your peers. So you will have different problems. Okay, like a student who is very much naughty, he might whistle in the class also. Okay, so you will be facing all these problems in the classroom teaching. But over here, only your friends will be there and your supervisors will be there to improve your teaching skills. So there is a difference in the micro teaching and your regular teaching class. Okay. Teaching becomes complex in the teaching when you are teaching in the school, and when you are teaching micro teaching class, when you are taking the training in the B.Ed classrooms, then it is simple because you are taking one skill at a time. Okay. The role of the supervisor is not clear in the regular teaching, but the role of supervisor is specific. Over here, the supervisor will give you proper feedback and he will help you to improve your teaching skills. Then pattern of classroom interaction cannot be studied in the traditional teaching, but pattern of classroom interaction can be studied objectively in the micro teaching because there are many criteria on which the feedback is given to the student. Okay. See on your screen definition of micro teaching. Yes, is it visible? Micro teaching is a training technique. देखो teaching technique नहीं है ये है क्या? Training technique which requires student teachers to teach a single concept. आपने एक single concept को teach करना है using specified teaching skill to a small number of pupils in a short duration of time. ठीक है, time भी आपका कम है यहाँ पे और pupils जो है वो भी थोड़े होंगे और एक ही skill आपने एक बार करवानी है. ठीक है. अब ये माइक्रो टीचिंग आपके B.Ed सेशन में क्यों है? Why it is there in your syllabus? Okay, what are the objectives which are to be achieved? First क्या है? To give practice teaching to the teachers under training by lessening the complexities of classroom situations. जो भी क्लासरूम सिचुएशंस आपने आगे जाके फेस करनी है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी उसमें, जो प्रॉब्लम्स आपको आएगी, वो अगर आपने माइक्रो टीचिंग की क्लासेस की होगी, आपके स्किल्स आपको सारे एक एक अच्छी तरह आ रहे होंगे, देन यू विल फेस लेस प्रॉब्लम्स. ओके, फिर आपको टैकल करना आ जाएगा कि मैंने सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कौन सी स्किल यूज करनी है ज्यादा क्लास में, आज ब्लैक बोर्ड राइटिंग करनी है कि मैंने इंट्रोडक्शन करनी है या मैंने
क्वेश्चन आंसर ज्यादा पूछने हैं, क्या करना है, दैट यू विल कम टू नो आफ्टर यू हैव स्टडीड माइक्रो टीचिंग और यू हैव गिवन द डेमोन्स्ट्रेशन. फिर आपको फीडबैक मिलेगी, फिर आपकी जो टीचिंग है वो रिफाइन हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ द टीचर्स एंड टू गिव द इमीडिएट फीडबैक. वही कि आपके जो ड्रॉबैक्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे और उसके लिए आपको बुरा नहीं सोचना है कि मुझे ये बोल दिया है. ठीक है. दैट इज फॉर योर इम्प्रूवमेंट. दैट इज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. वो कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है. ठीक है. फॉर योर इम्प्रूवमेंट, फॉर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. लर्नर आप हो और हम भी हैं. अभी तो हम भी लर्न कर रहे हैं. ठीक है. टू डेवलप experimental teacher education programs and encourage research identifying new teaching skills. इसमें क्या है कि जो अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो आप अपनी बीएड क्लासेस में कर सकते हो, ट्रेनिंग के टाइम कर सकते हो, अपने सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के लिए ये हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस द रिसर्च वर्क के लिए भी हेल्पफुल है. आपकी जो एक स्किल है आप उसको करोगे, देन यू कैन डू द रिसर्च ऑन दैट स्किल. फिर उसके बाद टू इम्प्रूव टीचिंग थ्रू मोर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड सुपरविजन. मोर कंट्रोल का यही मतलब है कि आपने एक ही स्किल एक बार करनी है. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है आपका मतलब जो आपने मटेरियल टीच करना है, ठीक है, जो कंटेंट होगी वो लिमिटेड होगी. पूरे का पूरा लेसन नहीं करना है. मे बी 1 पैराग्राफ यू हैव टू टीच और यू विल जस्ट टीच अबाउट व्हाट आर नाउन्स. ठीक है. थोड़ा छोटा सा टॉपिक आपने लेना है जो आपका 6 to 10 मिनट्स में कवर हो जाए और सुपरविजन आपको इसमें प्रोवाइड होगी फॉर योर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग. दीज आर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. प्रिंसिपल्स अंडरलाइन माइक्रो टीचिंग. अब प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ये आप सबको ही पता है. ठीक है. फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ वन स्किल एट अ टाइम. अब आप एक एक करके बताओ. बलवीर आप बताओ नेक्स्ट वाला कौन सा होगा स्किल, नेक्स्ट वाला कौन सा होगा प्रिंसिपल. हेलो शशि आप बताओ. सुन रहे हैं आप सबको? मैम सुन रहे हैं. हाँ जी बताओ क्या हो सकता है अगला प्रिंसिपल जो आपने अभी रीड किया, जो सब कुछ बताया, जो फोटो देखी उसमें जो सब कुछ बताया गया, क्या हो सकता है नेक्स्ट प्रिंसिपल. कोई बात नहीं अगर गलत भी हो जाएगा. एफिशिएंसी. ठीक है. एफिशिएंसी इंप्रूव होती है टीचर की. ठीक है. इसमें लिमिटेड कंटेंट भी होते हैं. ठीक है. ओके. और क्या कौन कौन सी चीजें कम होती हैं, जैसे देखो आपको प्रैक्टिस दी जाती है. वेरी गुड. एफिशिएंसी भी होती है. इमीडिएट फीडबैक की अभी बात हमने की थी. ठीक है. चलो ठीक है. कर लो अपना म्यूट शशि. प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. यही सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है. प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन. आपको इवैल्यूएट करके देन अगेन द टीचर विल गिव यू द टेल यू टू रीप्लान. फिर आप इवैल्यूएट करोगे अपने आप को, खुद की स्किल्स को कि मैंने अच्छी तरह किया है कि नहीं परफॉर्म. आप रिकॉर्ड करके भी कर सकते हो, खुद को देख सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस. उसके बाद दोबारा आप रीप्लान कर सकते हो, फिर दोबारा आप रीटीच कर सकते हो. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग. ठीक है. और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग आपको दी जाती है. आप एक एक स्टूडेंट आके अपना डेमो दोगे तो आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक है. सबको इकट्ठे तो नहीं हम बोल रहे हैं कि आप सारे इकट्ठे टीच करो. एक एक जना आके एक एक स्किल परफॉर्म करेगा, उससे आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग मिलेगी. फिर प्रिंसिपल ऑफ continuity. How you have to continuously teach in the class by integrating all the skills. ये आपको पता चलेगा with the help of micro teaching. माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर. अब जो प्रोसीजर हमने भी फॉलो करना है कॉलेज में और जो आपने भी करना है, इन्वॉल्व होना है इसमें, वो देखते हैं कैसे होगा. प्रोसेस, स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग. इट इन्वॉल्व्स द 3 phases. ओके. फेजेस कौन कौन से हैं माइक्रो टीचिंग के? फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन फेज. जो अभी आप कर रहे हो, आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो ना. ठीक है. नॉलेज एक्वायर है. प्री एक्टिव फेज जो अभी आपका चल रहा है, आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो इसमें. उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल. आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी स्किल की बाय द टीचर्स. फिर आप उसको एनालाइज करोगे और डिस्कस करोगे. ये क्या हो गया? आपने अपनी नॉलेज टीचर से एक्वायर कर ली. अब नेक्स्ट, अब देखो आप क्या करोगे. टेल मी क्या होगा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट है स्किल एक्विजिशन फेज, जिसमें आप अपनी स्किल को एक्वायर करोगे, उसको और अच्छा करोगे.
ठीक है, व्हाट इज दैट? इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज में क्या होता है? प्रिपेयर द माइक्रो लेसन। आपने अपना माइक्रो लेसन बनाना है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। आपको टीचर्स पहले डेमो में बता देंगे कि आपने माइक्रो लेसन कैसे बनाना है, ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योर माइक्रो लेसन, देन प्रैक्टिस द स्किल। जो प्रैक्टिस है यहाँ पे, प्रैक्टिस आपने घर पे भी करनी है, प्रैक्टिस आपने टीचर्स के सामने जो डेमो देना है वो भी इसी प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। व्हेन यू आर टीचिंग दैट इज आल्सो अ प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग टेक्निक, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस की। प्लान से हाँ जी, हेलो, सुना नहीं मुझे आपने जो पूछा। मैम लेसन प्लान से पहले आपने कौन सा पॉइंट बोला है? लेसन प्लान से पहले आपने टीचर्स को देखना है डेमो देते हुए, ठीक है। लेसन आपने उसको- प्लान से पहले आपने कौन सा पॉइंट बोला है? आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ओके, पूरा लिखा हुआ? पूछ रही हूँ मैं, दिख रहा है? इससे पहले देखो यही है नॉलेज एक्विजिशन Yes, ma'am. फेज, ठीक है, वेरी गुड। नॉलेज एक्विजिशन फेज में आप क्या करोगे? डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे टीचर्स की, और उसके बाद आप डिस्कस करोगे अपने टीचर्स के साथ। फिर आ जाएगा आपका स्किल एक्विजिशन फेज, जिसमें आप अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे। आप स्किल एक्वायर कर रहे हो, लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आप डेमो दोगे, ठीक है, टीचर्स के सामने और अपने पीयर ग्रुप के साथ, ठीक है, क्लासमेट्स के साथ। फिर उसके बाद आपने जो दिया होगा फॉर 6 to 10 मिनट्स, उसके बाद आपकी फीडबैक की जाएगी। इसका मतलब आप अपनी रिकॉर्ड करके खुद को भी देख सकते हो, तो आपकी इवैल्यूएशन होगी परफॉर्मेंस की, ठीक है, कि आप कौन कौन से फॉल्स हैं टीचिंग में, कौन कौन से गुड पॉइंट्स हैं आपकी टीचिंग में, ओके। देन नेक्स्ट इज, फिर आपको टीचर बताएंगे कि ओके आपको ना अपना लेसन प्लान दोबारा बना लो, या लेसन प्लान मत बनाओ, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, ठीक है। या यहाँ पे आपका बहुत अच्छा था लेसन, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग में अच्छा नहीं किया, तो आप दोबारा कर लो, तो देन यू हैव टू रीटीच, ठीक है। फिर रीटीच करोगे, दोबारा आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये एक तरह का साइकिल है जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है। देन यू हैव द ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज में क्या होता है? जो रियल टीचिंग जब आपने स्कूल में जाके करनी है, वहां जो आपको बेनिफिट मिल रहा है माइक्रो टीचिंग से, मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्किल टू द एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। ये है आपका ट्रांसफर फेज। जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप इस फेज में जाओगे, ठीक है। तो देयर आर 3 phases ऑफ माइक्रो टीचिंग, ओके। नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। यही चीज है जो आपको मैं दोबारा से बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट फेज था आपका, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वही चीज आपका फिर से रिपीटिशन हो रही है। दैट इज ओरिएंटेशन अबाउट ऑफ द टीचिंग स्किल्स, जो हम सब टीचर्स करेंगे, आपके साथ डिस्कस अभी करनी है सारी एक एक स्किल, ओके। देन सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, जो आपको टीचर सिलेक्ट करके आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देगा। देन मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन आप देखोगे, टीचर्स जो आपको देंगे, ठीक है, जो भी स्किल्स हैं उसकी। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉडल लेसन एंड डिस्कशन, फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है सबने, एंड फिर उसके डिस्कस करना है, ओके। दिस इज योर नॉलेज। मूव ऑन स्किल एक्विजिशन फेज। अब ये जो स्किल एक्विजिशन फेज है, इसमें आपने अपनी स्किल को अक्वायर करना है और उसको उसमें आपको ट्रेन करना है टीचर्स ने। उसमें आप क्या करोगे? प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। ये सेकंड फेज है आपका, जो आप माइक्रो लेसन प्लान अपना बनाओगे घर पे या टीचर्स के साथ डिस्कस करके करोगे। क्रिएशन ऑफ माइक्रो सेटिंग, ओके, क्रिएशन ऑफ माइक्रो सेटिंग। माइक्रो सेटिंग में यही आ जाता है आपका, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। दिख रही है? यस मैम। हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा, जस्ट एक मिनट, दोबारा मैं करती हूँ कनेक्ट। हाँ, अभी दिख रहा है स्किल एक्विजिशन फेज? यस ओके ओके, थैंक यू। यस प्रिपरेशन Yes, ऑफ, ma'am. थैंक यू, माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, फिर क्रिएशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग। ये आपने अपने माइंड में ही करनी है कि मैंने कितने टाइम का, ये टाइमिंग है आपकी, टाइमिंग की सेटिंग आपने करनी है, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि मैंने चलो 6 to 10 मिनट्स पढ़ाना है, तो मैंने क्या टीच करूँ मैं, कितना टॉपिक लेंथी नहीं होना चाहिए आपका, है ना, कितना छोटा कंटेंट में लूँ जो 10 मिनट्स में मैं टीच कर सकती हूँ। अगर आप 10 मिनट्स का लेसन प्लान बनाओगे तो आप उसको 6 मिनट्स में कवर कर पाओगे। अगर आप 15 मिनट्स का बनाओगे तो आप 12 मिनट्स में उसको कवर कर पाओगे।
तो इसलिए लेसन प्लान जो होगा उसमें ज्यादा बना लेना, मगर जब आप टीच करोगे तो उतने टाइम का कोई बात नहीं, अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इधर उधर भी हो जाता है, डजंट मैटर, दैट इज ओके। ठीक है, 6 to 10 मिनट्स आपकी जो टीच आपने करना है, फिर आपको टीचर उसका फीडबैक देंगे। फिर मे बी अगर बहुत अच्छा हुआ, रीप्लान आपको एक ही बार बोले करने के लिए, ठीक है, 2 बार ना बोलें, कई बार 3 बार भी होना पड़ता है, रीप्लान आपको करना पड़ता है। फिर रीप्लान, देन रीटीच, ओके, देन रीफीडबैक। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको वही सेटिंग करनी पड़ेगी, 5 to 10 होते हैं। देन सुपरवाइजर्स विल बी देयर। दिस इज योर माइक्रो टीचिंग सेटिंग। मींस ये बेसिकली आपका लेसन प्लान आपने छोटा बनाना है, उतना ही जितना आपका कंटेंट उतना ही हो कि 6 to 10 मिनट्स में आपका कवर हो जाए। फिर प्रैक्टिस ऑफ द स्किल, जो आपने टीच सेशन है आपका, जो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट इज योर प्रैक्टिस। उसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं क्योंकि दैट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट टीचर्स, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। ओके, ये एक ट्रेनिंग है आपकी, ये ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द फीडबैक। फिर आपको जो टीचर्स हैं वो आपको फीडबैक देंगे और आपके फ्रेंड्स भी आपको फीडबैक देंगे, तो उसको आपने कंस्ट्रक्टिवली लेना है कि ये मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और नेक्स्ट टाइम जब आप री प्लान करोगे, आप उस जो आपके फॉल्ट्स होंगे उनको ठीक करने की कोशिश करोगे नेचुरली। ठीक है, और आप अपना वीडियो भी खुद भी देखोगे कि हाँ यहाँ पे मैंने ऐसे ठीक नहीं बोला या यहाँ पे मैंने लाउडली बोल दिया। ठीक है, वो सारा आप अपना देखोगे कि कैसे अच्छी टीचिंग आप कर सकते हो। फिर आप रीप्लान उसको करोगे, फिर रीटीच करोगे। ये सारा कुछ किस फेज में है? स्किल एक्विजिशन फेज में, जहाँ पे आप एक्वायर कर रहे हो उसको, स्किल को। फिर रीटीच करोगे, then you will be provided the feedback again. Then repetition of the micro teaching cycle. ये आपका रिपीट भी हो सकता है क्योंकि आप दोबारा इम्प्रूव करो इसको। यू कैन शो योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर सुपरवाइजर नहीं भी बैठे हैं तो आप दोबारा प्लान करके कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ उनको दिखा सकते हो कि मैं अच्छा टीच कर रही हूँ कि नहीं टीच कर रही हूँ। खुद की रिकॉर्ड कर सकते हो, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्किल प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ये आपका है साइकिल जो अभी आपको आपके साथ मैंने किया। पहले आप प्लान करोगे, देन यू विल टीच, then you will be given feedback, okay, then replan, आप रीप्लान करोगे उसको, फिर रीटीच करोगे सेम स्किल। ये एक ही स्किल की बात हो रही है, आप एक ही स्किल को अभी कर रहे हो पॉलिश। फिर रीटीच, रीफीडबैक, ओके, देन दिस इज द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब ट्रांसफर फेज में जैसे बोला है, ट्रांसफर ऑफ द स्किल टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। ये आप जब जाके टीच करोगे स्कूल्स में, तब ये एक ही स्किल थोड़ी करोगे क्लास में, फिर आप सारी स्किल्स जो आपने टीच की होंगी वो सारी एक क्लास में ही यूज हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ द टीचिंग स्किल्स। तो टीचिंग क्या है? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्किल्स। उसमें आप सारी स्किल्स को एक ही क्लास में यूज कर सकते हो। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो भी करनी पड़ेगी, स्टिम्युलस वेरिएशन भी करोगे आप, ठीक है, इंट्रोडक्शन भी दोगे, है ना। ये सारी स्किल्स आपकी आ जाएंगी इन द रेगुलर टीचिंग क्लास। सो ये सारी स्किल्स क्या है? अकॉर्डिंग टू गेज, the teaching skills are specific instructional activities and procedures that a teacher may use in his classroom. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई डीमेरिट्स होंगे माइक्रो टीचिंग में, वो क्या हो सकते हैं? माइक्रो टीचिंग में डीमेरिट्स होंगे अगर, एक दो सोच के बताओ। वैसे तो आपको एडवांटेजेस पूछने चाहिए मुझे पहले चलो वो एंड में करेंगे। माइक्रो टीचिंग जो है वो बोलो दीपिका। मैम, माइक्रो टीचिंग जो प्रैक्टिस है वो 10 to 15 स्टूडेंट्स की है। आप डीमेरिट्स पूछ रहे हो ना, तो और वैसे तो हमें क्लास में ज्यादा स्ट्रेंथ पढ़ानी पड़ती है ना। हाँ, आई तो थिंक आप, हाँ जी, वेरी गुड, ये हो गया एक, हाँ जी, ये एक हो गया। क्योंकि ये आपको, चलो ये है कि आपको थोड़ा पता तो चल जाता है कि मैंने कैसे पढ़ाना है, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। आपने डीमेरिट बहुत अच्छा बोला है, ठीक है, वेरी गुड। और इसके लिए देखो आपको और एक डीमेरिट क्या है, बंद कर लो अपना। अच्छा, हाँ, मैम पेयर ग्रुप को पढ़ाना Yes, होता है timing. और वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। हाँ ठीक है, ये सेम एज के हो तो यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, क्योंकि आपके खुद के फ्रेंड्स हैं तो वो डिसिप्लिन ही रहेंगे। और वहाँ पे आपको, और उनको आता भी है टॉपिक।
हाँ वहाँ ये भी है कि उनको आता भी है टॉपिक, वहाँ पे आपको चैलेंज है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको फिर सुपरवाइजर्स हम भी कॉम्पिटेंट बच्चों के चाहिए। पॉइंट में नहीं सोच सकते ना। हाँ ठीक है, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे एक स्टूडेंट ने बोला, मुझे लगता है शायद शशि ने बोला था कि वेस्ट टाइम होता है, फिर दीपिका ने भी बोला था, वो भी अभी आपका भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर्स, ठीक है, जो आपको मैन्यूटली देखें, कोई बायस्ड डिसीजन ना लें कि इसने अच्छा नहीं किया, या ये वो स्टूडेंट उसको नहीं पसंद तो ये बोल देना कि आपने नहीं अच्छा किया। ठीक है, तो ये माइन्यूटली एंड ऑब्जेक्टिवली सुपरवाइजर्स को फीडबैक देना है। ठीक है, सो इसमें ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए दैट द सुपरवाइजर्स आर नॉट ट्रेन्ड। सुपरवाइजर्स जो हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। ये सारे डीमेरिट्स हैं कि सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे कई बार नहीं मिलते हैं। फिर ऑल्सो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपको बार बार उसको प्लान करना पड़ेगा। फिर यही चीज है कि यहाँ पे जो क्रिएटिविटी भी नहीं रहती टीचर्स की, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि उसी टाइम में फिर दूसरे बच्चे को भी देखना होता है सुपरवाइजर को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर might evolve something new, okay, but he has to stop as the micro lesson ends. Micro lesson तो micro है, तो उसमें उसकी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी बीच में रुक जाती है, ऐसे भी हो सकता है, मगर ऐसे हम नहीं आपके साथ करने वाले। नेक्स्ट इज इट कैन बी carried out in control type of environment। जैसे आप लोगों ने बोला कि कंट्रोल, यहाँ पे बहुत कंट्रोल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे इतने डिसिप्लिन्ड बच्चे नहीं होंगे। Micro teaching alone may not be sufficient. Okay, there is a मैम need of integrating it with the other teaching techniques. ये कर ले कंप्लीट, फिर आप पूछना। Micro teaching is a costly affair. ठीक है, if observation is made with the help of video films और CCTV अगर यूज करो या तो फिर ये कॉस्टली अफेयर हो जाता है। हाँ जी बोलो दीपिका, आप कुछ बोल रहे हो? इससे पहले कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा था। इट डिस्टर्ब्स द एग्जिस्टिंग टाइम टेबल, और जो टाइम टेबल है वो भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि आपको बार बार रीप्लान करना पड़ता है और इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, यस स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, ये चीज जो मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस कर Yes, लिया। ma'am. Okay, thank you. Then second point, it enables understanding of behaviors important in the classroom teaching. थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है कि कैसा behavior student दिखाएगा या कैसा question पूछेगा। पूरा तो नहीं पता चलता, मगर थोड़ा बहुत you come to know about, you have the confidence, okay, to tackle some of the situations. उसके बाद it increases the confidence of the learner teacher. Confidence improve हो जाएगा. It is a vehicle of continuous training for both the beginners and for senior teachers. Okay, it is a training for us also and for you also. It provides expert supervision and constructive feedback. Okay, आपको supervision मिल जाता है experts से और constructive feedback मिलता है so that you can improve